Hello everyone. Today we are going to start our module 3. In module 3, we will see RSI, Relative Strength Index, how it works, divergence, and then after we will talk about support and resistance analysis using RSI. And after that price action को कैसे स्टडी करते हैं और सप्लाई डिमांड को हम समझने की कोशिश करेंगे विद स्टॉक्स एग्जांपल्स. तो लेट्स कम टू द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. तो व्हाट एग्जैक्टली द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज, हम इसको मॉड्यूल 1 में भी हमने यूज़ किया. वी आर यूजिंग दिस इंडिकेटर फ्रॉम मॉड्यूल 1, बट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट दिस इंडिकेटर इज ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू डीप डाउन स्टडी इन दिस मॉड्यूल 3. So actually RSI is a momentum indicator. It shows you the momentum in the market or in the stock, whether the momentum is there or not, right? So being an trader, momentum is too important for us. So you don't need to drill down the exact formula, but just a watch over the formula that what RSI is. RSI is just the average gain. इसको minus करेंगे तो average gain upon average losses. तो in my terminology we will talk in the terms of positive closes over negative closes. मतलब number of positive closes over negative closes. This is going to be the RSI, or you can say percentage gain over the percentage loss during the specific period of time, right? तो हम सीधा इसको चार्ट से समझ में आ जाएगा आपको. तो you don't need to go much more inside what the formula is saying. So let's come to the chart. So this is our RSI and our let me show you the RSI setting. So this is the input of 14. 14 means if you are using the daily chart, that means the last 14 days number of positive closes over the negative closes will be counted. And similarly some people use the 9, but 14 is okay. So and this purple line is that shows you this RSI exact value calculated from the formula, and this top band is 70, RSI 70, and this below line is 30. तो 30 to 70 is a range. इसके नीचे जो होता है उसको oversold zone बोलते हैं, and above this 70 this is called overbought zone. Mostly मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि above 70 रहेगा, that means that stock has the momentum. So being a momentum trader, we will always try to chase the stocks which have a good momentum, right? Now talking take it in a desi terminology. तो suppose if RSI जो 14 days का आपका जो average है, if that is 70, right? तो what it means, तो from 14 days 70% of the days are positive closed compared to the negative closes, राइट. फॉर एग्जाम्पल सपोज आप पकड़ लीजिए कि RSI किसी पॉइंट पे 50 है. सपोज एट दिस इज द सेंटर लाइन, तो अराउंड दिस इज द 40. तो इट मीन्स लास्ट 14 days 7 days क्लोज given the positive closes and the 7 day equally given the negative closes, right? तो मार्केट कहीं भी, या मार्केट या स्टॉक जो भी आप बोलोगे वो कहीं भी नहीं गया है, तो नंबर ऑफ क्लोजेस, ग्रीन क्लोजेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रेड क्लोजेस, ठीक है? या फिर यू कैन से इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ परसेंटेज गेन इन लास्ट 14 days इज इक्वल. मतलब 7 दिन आपका मार्केट ऊपर रहा है और 7 दिन नीचे रहा है, राइट? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रीड द RSI फ्रॉम हेयर ऑन. So I am going to use the same terminology again and again, that is the percentage of positive closes over the negative closes. So if I am talking about 70 RSI, that means out of 10, 7 days the number of out of if I am talking about 70 RSI, that means out of 10 days 7 days is the positive closes and the 3 days is the negative closes, right? So I hope you understand this the meaning of this 14 and the this thing. Now coming to whether it's a leading indicator or the lagging indicator. Actually most of the आप देखेंगे तो कोई भी फिन इन्फ्लुएंसर में बाकी सब ये जो आपके इंडिकेटर्स हैं, ये सब डार्वेक्स बॉक्स है, ये सब अलग हो जाता है, लेकिन नॉर्मली RSI सब लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज फॉर ए ट्रेडर मोमेंटम इज मस्ट, राइट? तो जैसे राइट नाउ अभी अगर आप मार्केट की बात करेंगे तो देर इज नो मोमेंटम. तो वी विल लुक एट दिस विद द चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ चार्ट. बट नाउ कमिंग टू द लीडिंग एंड द लैगिंग इंडिकेटर. एक्चुअली RSI आपको ये बताता है कि आगे क्या होने वाला है, राइट? तो उसको बोलते हैं लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर. लीडिंग इंडिकेटर जो होते हैं दैट विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग, एंड द लैगिंग इंडिकेटर इज व्हाट दैट विल टेल यू दैट मतलब वो प्राइस और वॉल्यूम से पीछे चलता है.
तो ठीक है, तो जो RSI है दैट इज अ लैगिंग इंडिकेटर, दैट इज नॉट ए लीडिंग इंडिकेटर। सिर्फ जितने भी इंडिकेटर्स मार्केट के अंदर ड्राइव हुए हैं वो सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, बिकॉज दे आर ड्राइव फ्रॉम द प्राइस एंड द वॉल्यूम। तो द प्राइस एंड द वॉल्यूम आर इज द ओनली इंडिकेटर विच इज द लीडिंग इंडिकेटर, और बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं वो सब उनमें से ही ड्राइव हुए हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 14 RSI सपोज, तो अगर यहाँ पे 70 RSI है, दैट डजंट गारंटीड कि यहाँ से आप ऊपर ही जाएगा, मतलब RSI ऊपर जाएगा, बट taking the projection of last 14 days will show me that out of 10 days, suppose 14 का आप निकाल लेना 70%, तो मैं RSI 10 पकड़ लेते हैं, तो 10 out of 10 days 7 days क्लोजिंग इज पॉजिटिव कंपेयर टू द अदर 3 days। तो वहाँ से एक प्रोजेक्शन मिल जाता है कि आगे मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, राइट। इट डजंट गारंटी यू कि नेक्स्ट डे की भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा, बिकॉज दैट शोज द कैलकुलेशन ऑफ द पास्ट डेटा। तो फॉर दैट रीजन RSI and any other indicator is lagging indicator in the market. Only the price and the volume, which will look into the price action section. So that is only the leading indicator in the market that will show you the current status of the current position of market, right? For that reason, आपने सुना होगा मार्केट के अंदर सब बोलते हैं प्राइस एक्शन जो होता है दैट इज सुप्रीम, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है। बाकी जितने भी इंडिकेटर देखोगे आप सब वहीं से निकल गए आए हैं। तो नाउ let me again make you understand about the RSI in a very desi terminology. Actually RSI is just like your speedometer in bike, जो आपकी बाइक या कार के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है, exactly it show you that thing. If your speed is high, suppose अगर आप कार चला रहे हैं और आपका स्पीड 100 या 120 के पास है, तो that shows कि आप अपनी जो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे that will be you will save good time if you are going with the speed of 120 or 110, but at the same time if there is chances of accident is quite high. Are you getting this? तो same way अगर आपका RSI जो है if that is above 70-75, that shows that stock के अंदर momentum है, no doubt, right? but अगर मोमेंटम है, इन केस अगर मार्केट रिवर्स होता है या उस स्टॉक के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो एट दैट टाइम जो जर्क होगा वो भी अच्छा खासा आपके पोर्टफोलियो को डैमेज करेगा। तो दिस शुड यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड, फाइन। नाउ let me take this example only. I think this is Vishnu Prakash, right? So if you see at this level from this point, right, यहाँ से आप देखेंगे तो RSI enter into the zone of 70 and after that this will stay above 50 to 70 range, and at this point this is our first or second breakout, आप कह सकते हो second third breakout, where the RSI is good and everything is fine. तो now at this point this momentum is high. यहाँ पे ये गारंटी नहीं हो रहा कि दिस स्टॉक इज गोइंग टू मैनिपुलेट और नॉट, यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि इस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। अगेन आई एम रिपीटिंग यू, ऑल दिस कंडीशन फुलफिलिंग डजंट मीन कि देयर इज नो सच टाइप ऑफ मैनिपुलेशन की वजह से भी ये चीज़ें होती है। तो एट दिस पॉइंट इफ यू सी दैट RSI क्रॉसेस द 70 एंड योर वॉल्यूम इज अराउंड 5 million, मतलब 10x आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो फॉर दैट रीजन द स्टॉक इज गोइंग अप विद ए गुड मोमेंटम, राइट। तो अब जब मैंने बोला कि जब मोमेंटम स्ट्रांग है तो कोई भी इम्पैक्ट आएगा रिजल्ट का या फिर अर्निंग्स का या फिर कोई भी न्यूज़ या फिर ओवरऑल मार्केट का, तो वो इम्पैक्ट का जो डेंट होगा वो भी स्ट्रांग ही होगा, वीक नहीं होगा। तो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आया तो उसका जो डेंट था दैट इज़ अराउंड 17 to 18%। गॉट इट। अभी 18% का जो जर्क आया, लोगों के लिए क्या होगा सडनली कि नहीं स्टॉक मतलब कंपनी में बहुत कुछ ख़राब हो गया या ये हो गया, ऐसा नहीं है। स्टॉक मोमेंटम में था तो कोई भी रिएक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव वो उसी मोमेंटम के वे में ही उसका रिस्पॉन्स करेगा, एंड फॉर दैट रीज़न द स्टॉक गेट द जर्क ऑफ दिस वन। तो मोस्टली इफ़ यू हैव try to recognize my pattern, if I am taking the result bet, in most of the cases I will take the bet when there is a good VCP pattern or there is no such higher momentum in the stock. For example FCL आप देखेंगे, दिस इज माई आई बॉट दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट, राइट, एंड रिजल्ट था तो मैंने एक बैट लिया था कि ठीक है देखते हैं कि यहाँ हो सकता है कि इतने टाइम से चला नहीं, तो अगर रिजल्ट में थोड़ा भी कुछ मतलब कुछ भी अच्छा हुआ तो इट विल गिव ए गुड ब्रेकआउट। बट वॉट हैपन, द रिजल्ट वॉज नॉट दैट मच गुड, तो फॉर दैट रीजन वॉट हैपन, द स्टॉक फॉल, बट द फॉल इज जस्ट आई थिंक दिस इज 4 or 5, मतलब ओवरऑल 5 to 9%, इसमें से आप मान लो मार्केट का भी थोड़ा सा हिस्सा निकाल दोगे तो मतलब 4 to 5-6% का एक फॉल आया। रीज़न क्या था रिजल्ट खराब आने के बाद भी, बिकॉज दिस स्टॉक इज ऑलरेडी इन ए VCP। अगर ये स्टॉक
मतलब रिजल्ट से पहले इस तरह का स्पाइक होता है उसके अंदर, देन आई विल श्योरली नॉट बैट ऑन दिस स्टॉक एज ए अर्निंग फ्रॉम अर्निंग प्रोस्पेक्ट. द रीजन इज दैट बिकॉज अगर ये स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुका है. अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऑलरेडी दिस प्राइस इज कंसिडर्ड राइट, एंड अगर रिजल्ट बुरा आया तो इसको वो छोड़ेंगे नहीं बिकॉज एट दिस प्राइस द मोमेंटम इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है. तो फॉर दैट रीजन if the stock is already moved before the earning, so you should ignore such type of stock, either wait for the earning to cool off in respect of price, right? So now see the RSI magic. So let me show you some examples. ठीक है, this is Dixon. तो here you see that at this point अगर आप देखोगे your monthly RSI is 70 at this point, right? And this time price is 1100. ठीक है, the whole journey where the stock in the monthly RSI आपको यहाँ पे again 70 हुआ, till that it is between the range of 70 to 95, and at this point your stock is around 4700, मतलब almost 5x, right? So for a swing trader, or you can say for a mid-term or even a long-term investor, we need RSI on the monthly track to be in the 70 zone only for a bigger, मतलब मल्टी एक्स करके आपको अगर 2x 3x चाहिए तो यू शुड नीड ए RSI एट दिस रेंज. ठीक है, इफ दिस पॉइंट अगर आप यहाँ पे फिर से अगेन देखेंगे तो योर RSI अगेन एंटर्ड इनटू द जोन ऑफ 70, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई थिंक 6400 to 11,000 here also almost the stock make it 2x. So in short what I want to say you कि if the monthly RSI is above 70, that doesn't guarantee you that the on the daily thing the chart will be above 70, because उसमें क्या होगा आपका डेली के अंदर कूल डाउन होता रहेगा. तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इवन इन डेली चार्ट द RSI इज 30 और 70 ऑल्सो. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ योर मंथली RSI इज गुड एंड ओवरऑल मार्केट इज गुड, तो अगर डेली में अगर आपको वो स्टॉक 50 के आसपास भी मिलता है तो इट्स ए गुड थिंग, बिकॉज in a up momentum if the stock cool off, तो वो कूल ऑफ होके मोस्टली 70 से 50 के RSI पे आएगा एंड 50 से वापस रिवर्स बैक हो जाएगा. बिकॉज इफ द स्टॉक इज मूविंग फॉर एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट अगर आप देखेंगे योर स्टॉक वॉज ट्रेडिंग अराउंड 70 जोन, फॉर फ्यू डेज इट्स कम डाउन टू टच द 50 and again it went above 70. That shows that the stock has a good momentum, right? And this all is because your monthly chart is good. So for that reason, if you are ever looking for RSI, better look for the monthly chart. If your monthly chart is in the RSI of 70, then on daily if you are buying the stock near support, or you can say 50 or 60 RSI, it's a good thing. Got it? We will see with some example, so it will be more clear to you. Let me जैसे अपन इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सल्जर ले लेते हैं, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट द सल्जर, तो सल्जर इफ यू सी दैट RSI इज ऑलरेडी अबव 70, मतलब ये 70 के तो टच करके चल ही रहा था. एट दिस पॉइंट इट कस द 70 RSI, एंड एट द सेम टाइम यू नो दैट दिस इज फॉर्मिंग योर जिद्दी पैटर्न. So this candle is around 74%, again 15-16%, मतलब that is almost 100% return. So what is happening at this point? ठीक है, your RSI was 86 on monthly. So just what happened, your monthly RSI settled down to the again 70, and again the stock start moving. तो जब वो नीचे आया तो it's a correction of 15%, and after this the again journey started. तो अगर जब ये मंथली पे 70 तक कूल डाउन हुआ तो डेली के अंदर ये काफ़ी अच्छा कूल डाउन आपको ओवरसोल्ड भी आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो आप देखोगे डेली के अंदर तो दैट वाज दैट मंथली कैंडल ऑफ 100%. आफ्टर दैट यू विल सी दैट देयर इज अ नो मोमेंटम इन द स्टॉक, देयर इज नो वॉल्यूम इन द स्टॉक. तो सच टाइप ऑफ स्टॉक इफ यू फाइंड दैट द गुड सपोर्ट, तो यू कैन टेक ए गुड बेट ऑल्सो एट दिस पॉइंट. जरूरी नहीं है कि आप बॉक्स का वेट करें जो मैंने आपको सिखाया है, बट इफ द ओवरऑल मार्केट इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, तो यू हैव टू इफ स्टिल यू वांट टू बाय द स्टॉक, बेटर टू बाय द स्टॉक एट द सपोर्ट, बिकॉज आप ब्रेकआउट पे बाय करोगे तो वो फेल हो जाएगा, राइट? So for that reason, if everything is okay on the monthly chart, then you can even bet on the 50 or the 20 RSI on daily chart, right?
तो आप यहाँ देखोगे सपोर्ट लेके अगेन द स्टॉक पम्प्ड अप एंड दिस इज हाउ इट गोज. Okay. Now, coming to the concept of RSI divergence. Actually, let me open the Nifty chart. Okay, this is your Nifty chart. Let me hide rest other of the things. You will see one thing, that most of the cases your price and the RSI move hand in hand. Suppose the price is going down, तो your RSI will go down. RSI goes up, your price will go up. Same way RSI जब भी नीचे आएगा तो price भी नीचे आ रहा है, मतलब you can see a good relation between this, right? तो ideally if the price is going higher, ठीक है, तो your RSI will also make such type of pattern. Okay, this is your price, this is your RSI. But as you know that RSI has a range of 0 to 100, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता. तो for that reason you will find there are divergences. I am now introducing one term with you that is called divergence. So how to find the divergence and how the divergence fix, that I am going to discuss with you. Let me again draw the same pattern what I discussed with you. Suppose this is your price going higher, right? This is your price. Now against this should be your RSI. Okay, this is your RSI going like this. What will happen at one point? Okay, your price will go up, but if you find here, your price is going up but your RSI don't, right? What it shows negative divergence. Negative divergence मतलब इस प्राइस को भी इसके साथ कोरिलेट होना था, बट ये नहीं हुआ. तो यहाँ पे इनका जो रिलेशन था, मतलब हैंड इन हैंड जो चलना था, दैट कैंसिल आउट एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस. इसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं कि प्राइस इज गोइंग अप, मतलब दिस प्राइस लैग इज गोइंग अप बट एट दैट टाइम द RSI, मतलब नंबर ऑफ ग्रीन क्लोजेस, इसकी जो जर्नी की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव क्लोजेस आर लेस कंपेयर टू द नंबर ऑफ नेगेटिव क्लोजेस. बट जो पॉजिटिव क्लोजेस थी उनका जो मोमेंटम था, कैंडल्स का जो मोमेंटम था, दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. फॉर दैट रीजन प्राइस तो ऊपर चला गया, लेकिन नंबर ऑफ क्लोजेस जो थे डेज के टर्म्स में, दैट इज नॉट हायर कंपेयर टू द नंबर ऑफ ग्रीन क्लोजेस. एंड फॉर दैट रीजन यहाँ पे आपका RSI का डाइवर्जेंस बिल्ड हुआ. तो अब क्या होगा, नाउ दिस विल बिकम योर टेक्निकल टॉप. ये मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, जस्ट एक बार आप थ्योरी समझ लो, देन आई विल टेक सम एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लैरिफाई टू यू. तो एट दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड योर टेक्निकल टॉप. ठीक है, ये आपका टेक्निकल टॉप हो गया. तो क्योंकि यहाँ से ये डाइवर्जेंस बिल्ड होना शुरू हुआ था, द डाइवर्जेंस स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम दिस रीजन, तो दिस इज योर टेक्निकल टॉप. तो प्राइस हैज टू कम अगेन बैक टू दिस लेवल और मे बी बिलो दिस लेवल टू सॉर्ट इट आउट दिस डाइवर्जेंस. अगेन आई एम रिपीटिंग इन हिंदी कि इफ़ द प्राइस मेक, मतलब अगर आपका प्राइस हायर हाई बना रहा है और आपका RSI भी ऊपर जा रहा है और ऐसा कोई डाइवर्जेंस अगर बिल्ड होता है कि RSI आपका नहीं जा रहा, उसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस. और जब भी नेगेटिव डाइवर्जेंस बिल्ड होता है तो जिस प्राइस से वो नेगेटिव डाइवर्जेंस बनना शुरू हुआ है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द स्टॉक प्राइस विल कम डाउन बैक टू दैट सेम लेवल और बिलो दैट लेवल टू फिक्स दिस. अभी एक बार ये जो चीज़ है ये फिक्स हो गया, देन अगेन दिस पैटर्न विल कंटिन्यू. नाउ लेट मी टेक सम एग्जांपल फॉर more clarified, more clarification to this is your Nifty chart. ठीक है, see at this point, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे your price is going up but what your RSI is doing at this point, your RSI is going down. ठीक है, अब इसको समझना कैसे है उस टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं. इसका मतलब नंबर ऑफ जो पॉजिटिव क्लोजेस थे दैट इज लोअर कंपेयर टू द रेड क्लोजेस, बट जो प्राइस मोमेंटम है, जो मतलब एक दिन का जो मोमेंटम है, दैट इज गुड, दैट इज स्ट्रॉन्ग. फॉर दैट रीजन वो ऊपर है. तो आपका ये जो हुआ ये टेक्निकल टॉप हो गया. नॉर्मली जब भी क्या बड़े प्लेयर्स को निकलना होता है तो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं.
ठीक है, मैनिपुलेट करके वो इतना स्ट्रॉन्ग करके रख देंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ डेज है ना क्लोजेस के, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। फॉर दैट रीजन यहाँ डाइवर्जेंस बिल्ड होना आपका शुरू हो जाएगा। तो आपका RSI वीक हो रहा है, इसका मतलब इसको हाउ टू रीड दिस, मतलब इन एवरी अप लैग योर स्ट्रेंथ इज लोअर कंपेयर टू द प्रीवियस लैग। अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट शोज कि आपका जो पुराने लेग्स का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गर है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपका जो लेग का स्ट्रेंथ है वो कम होता जा रहा है, RSI कम हो रहा है। दैट शोज कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट जो स्ट्रेंथ है इस लेग के अंदर वो वीक होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो नीचे आएगा। तो अगेन दिस इज कॉल्ड योर नेगेटिव डाइवर्जेंस बिकॉज price is going higher high and your RSI is not, right? So this will become your technical top. तो price has to come to this level to fix it out. तो आपका ये डाइवर्जेंस बन गया, तो यहाँ ये आपका टॉप है, तो या तो इस पॉइंट तक ऐसे थोड़ा नीचे तक प्राइस आपका आएगा टू फिक्स दिस लेवल। नाउ दिस इज सॉर्टेड आउट, आपका प्राइस यहाँ पे आ गया, इंडेक्स वापस यहाँ पे आ गया इस लेवल पे। नाउ व्हाट दिस जो भी ये बिल्ड हुआ था टेक्निकल इशू, दैट इज नाउ रिजॉल्व। नाउ यू डोंट कंसिडर, नीड टू कंसिडर दिस। नाउ आगे अगर आप देखो कि डाइवर्जेंस बिल्ड होता है क्या, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखोगे योर प्राइस, मतलब योर निफ्टी इज एट द सेम लेवल बट योर RSI डोंट, आपके RSI नीचे की तरफ है, ठीक है। दैट शोज दिस लैग, व्हाट इट शोज दैट दिस लैग इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द दिस लैग। क्योंकि इसमें अगर अंदर आप गिनेंगे तो नंबर ऑफ नेगेटिव क्लोजेज हैं वो ज़्यादा है नंबर ऑफ पॉजिटिव क्लोजेज से। तो फॉर दैट रीज़न अगर मान लीजिए अगर 14 डेज़ का आप देख रहे हो तो हो सकता है 10 डेज आपका नेगेटिव क्लोज हो और सिर्फ 4 या 5 डेज आपका पॉजिटिव क्लोज हो। फॉर दैट रीज़न योर RSI इज गोइंग डाउन। तो इसलिए मैंने फॉर दैट रीज़न आई एम यूजिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ क्लोजिंग की closing is decided by by the big players. Opening of the market is decided by the retailers and the closing is done by the professionals because number of close, मतलब जो closing होती है ना, closing मैटर करती है कि ये ग्रीन क्लोज है या रेड क्लोज है या मोमेंटम क्या है उस क्लोज का। तो यहाँ से आपको यही इंडिकेशन मिलता है कि what the professionals are doing in the market. If the number of red closes are high, your RSI will start becoming weak. If the number of green closes are strong, for that reason your RSI will go up. तो दिस इज योर डाइवर्जेंस, तो दिस इज योर टेक्निकल टॉप। तो इसी एंगल से अगर आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो अराउंड दैट लेवल तक योर RSI विल कम, मतलब योर निफ्टी विल कम डाउन टू फिक्स दिस डाइवर्जेंस। वंस द डाइवर्जेंस इज फिक्स आउट, नाउ दिस इज कैंसिल आउट, ठीक है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट, राइट। आप देखेंगे योर RSI वॉज गोइंग अप एंड योर निफ्टी इज गोइंग डाउन, एंड फॉर दैट रीज़न एट दिस पॉइंट और अराउंड यहाँ पे इन दो कैंडल्स के अंदर ही मैंने एक ट्वीट लिखा था कि आई एम सिटिंग ऑन 30% कैश एंड 70% आई एम बुकिंग। आई थिंक यही दिन होगा, आप देखना उसको, 1 अगस्त का ही शायद दिन होगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दैट वॉज 1 अगस्त बिकॉज द डाइवर्जेंस वॉज स्टार्ट बिल्डिंग। तो फॉर दैट रीज़न दिस इज योर टेक्निकल टॉप, राइट। तो प्राइस हैज और द निफ्टी हैज टू कम टू दिस लेवल और मे बी बिलो दिस लेवल टू फिक्स इट आउट। तो अगर इसी एंगल से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ तक मतलब कहीं पे यहाँ पे आके इसको सेटल हो जाना चाहिए, मतलब दिस डाइवर्जेंस इज फिक्स आउट। नाउ व्हाट निफ्टी डू फ्रॉम हेयर वी डोंट नो बट दिस इज हाउ दिस डाइवर्जेंस इज फिक्स्ड आउट, ओके। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस। लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स। चलो कोविड का ही ले लेते हैं। ठीक है, दिस वॉज द दिसंबर, मतलब यहाँ से कोविड का वो सब कहानी शुरू हो गया था चाइना के अंदर। तो इफ़ यू फाइंड एट दिस पॉइंट, राइट, आप देखोगे तो यहीं से आपका जो डाइवर्जेंस था वो बिल्ड होना शुरू हो गया था। निफ्टी वॉज मेकिंग हायर हाई बट एट एवरी हाई योर RSI वॉज लो एंड दैट शोज दैट योर इंडेक्स एट एवरी मूव इज नॉट गिविंग द गुड मोमेंटम इन द टर्म्स ऑफ प्राइस। और ऐसे दिन में आपको पता है क्या होता है, आपको लगेगा, इसका मैं आपको देसी तरीका ही बता देता हूँ।
देसी तरीके में क्या होगा, इस समय द मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन आपका पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जाएगा। जब कई बार आपने देखा होगा मैनी पीपल टोल्ड अबाउट दैट मार्केट इज ग्रीन बट माई पोर्टफोलियो इज रेड, दिस रीजन इज बिकॉज द मार्केट इज मैनिपुलेटेड एट दैट टाइम, बिकॉज एट दैट टाइम योर दैट लैग इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द प्रीवियस वन, मतलब समवेयर द मार्केट इज लूजिंग द स्ट्रेंथ। एंड फॉर द सेम रीजन आपने देखा होगा जब भी आपका पोर्टफोलियो कभी हायर नेगेटिव साइड में जाता है उससे कुछ दिन पहले से आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म करना बंद कर देता है। इवन अगर मार्केट परफॉर्म कर भी रहा होगा तो आपका पोर्टफोलियो बंद कर देता है, बिकॉज दैट ये दिस इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस इशू, राइट। नाउ कमिंग टू द मंथली चार्ट, नाउ आई विल शो यू वन गुड ब्यूटी इन दिस मार्केट, ठीक है। This you will find the divergence on every time frame, daily, weekly और monthly, लेकिन bigger the time frame of divergence it will take more time to sort out. Again I am repeating, अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपका डाइवर्जेंस है तो वो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसको टाइम भी उतना लगेगा। इफ दिस इज ऑन मंथली तो इट विल टेक 2 3 4 मंथ 5 मंथ इवन 8 मंथ to sort the divergence. Similarly on weekly, if the divergence is on weekly chart तो it may take 5 to 7 8 10 weeks, daily पे है तो it may take that much time। तो even if everything is okay on monthly chart, right, तो भी आप डेली पे या आवरली में देखेंगे तो डाइवर्जेंस बिल्ड होते रहेंगे और वो अपने आप सॉर्ट आउट होते रहेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो, दैट मैटर्स टू यू, बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग ऑन वीकली चार्ट तो डेली पे वो सॉर्ट डाइवर्जेंस विल बिल्ड होंगे और दैट विल सॉर्ट आउट। तो एट एवरी एक्शन यू डोंट नीड टू टेक ए एक्शन, बिकॉज कितनी बार ऐसे बाय सेल करते रहोगे आप, ठीक है। तो इफ यू थिंक दैट बिकॉज ऑफ कोविड द मार्केट फॉल, तो एक्चुअली द आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज द मंथली चार्ट एंड इफ यू सी, अगर आप मार्केट में उस टाइम पे थे 2018 से 20 के टाइम में, तो आपको मालूम होगा कि उस टाइम पे इवन स्मॉल कैप वॉज नॉट परफॉर्मिंग, इवन निफ्टी वॉज परफॉर्मिंग, बट द ओवरऑल stocks in the nifties are not that strong because the divergence was already start built it from 2018 to 2020, ठीक है। जब भी ऐसा केस होता है कि मार्केट में मतलब वीकनेस होती है तो कहीं ना कहीं पे एक मार्केट का रीसेट होता है, ठीक है। एंड दिस वाज दैट रीसेट, तो दिस इज योर एक्चुअली टेक्निकल टॉप इन दिस। तो मार्केट वाज मतलब स्लो हो गया था वो इस पूरे 2 साल के अंदर कि क्या करना है। तो जब भी मैंने आपको बोला अभी भी फॉर दैट रीज़न एक ट्वीट मैंने किया था कि जब भी कभी मार्केट स्लो हो जाता है तो वो एक रीसेट लेता है और रीसेट के बाद वो अगेन उसके अंदर स्ट्रेंथ आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ योर टेक्निकल टॉप, राइट। तो मार्केट हैज़ टू, इस एंगल पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन तक तो ऑलमोस्ट आना चाहिए था, ठीक है। पैनिक की वजह से ये थोड़ा और नीचे गया, बिकॉज इफ़ यू थिंक दैट दिस मार्केट इज फॉल ड्यू टू द कोविड, तो कोविड तो यहाँ पे पूरा लॉकडाउन का टाइम था, तो यहाँ पे मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए था। गॉट इट, बिकॉज विद इन इस मंथ के अंदर तो क्लियर भी नहीं हुआ था कि दिस लॉकडाउन इज all or what मतलब what next in the COVID, nobody knows at that time, still the market start recovering, got it। so this was the actual reason behind this correction। you can take more such examples, but just remember one thing, if the divergence is on the bigger time frame it will take bigger time to sort it out, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो निफ्टी वॉज एट द सेम लेवल बट योर RSI इज टू लो, मतलब ये जो लास्ट लेग था, ये जो आप लेग देख रहे हो लास्ट 3 वीक का, दैट वॉज गुड in the terms of price, but the number of closes if you will count in this out of 14 days that is not that strong, तो for that reason this leg is weak, राइट। तो उसकी वजह से आपका ये डाइवर्जेंस बिल्ड हुआ कि मतलब द प्राइस वॉज एट द सेम लेवल बट योर RSI डोंट। या इसको और देसी टर्मिनोलॉजी में आपको समझना है तो यू कैन से कि आप फिर से फाइट करने गए उसी प्राइस के ऊपर, लेकिन जो आपका हॉर्स था ना, आपके घोड़े जो थे, आपकी जो सेना थी वो थक चुकी थी, ठीक है। उस सेना के अंदर स्ट्रेंथ नहीं था कि वो और तेज दौड़ सके। तो जब भी ऐसा होगा तो योर फेलियर, चांस ऑफ फेलियर विल बी क्वाइट हाई। आई कैन शो यू दिस थिंग इन राइट नाउ इन इस मार्केट में आपको बहुत सारी जगह आपको ये इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर HCL चार्ट, राइट।
तो आप यहाँ पे देखेंगे तो योर प्राइस इज गोइंग अप एंड योर डाइवर्जेंस स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम दिस लेवल, राइट? तो दिस इज योर टेक्निकल टॉप. तो प्राइस हैज टू कम टू सॉर्ट इट आउट दिस जोन. तो आप देखोगे एग्जैक्टली इसका लो बना के वो ऊपर गया. नाउ दिस थिंग इज सॉर्टेड आउट. नाउ अगेन इफ द स्टॉक मूव लाइक दिस, then you don't need to compare it with this part, right? Because this issue, what this issue started from this time, this is now sorted out because your price has touched to this level. Got it? Let me show you few more examples. Here this is Praj Industry at this level. Your price is almost same level, but your RSI is falling, right? So this is your technical top. ठीक है, वैसे तो आपका टेक्निकल टॉप देखोगे तो उससे पहले यही बनना शुरू हो चुका था. मतलब आपका प्राइस तो यहीं से ही आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपका प्राइस सबसे RSI आपका हाई था इस पॉइंट पे, ठीक है. यहाँ से आपका प्राइस इतना ऊपर नहीं जा पाया कंपेयर टू, मतलब योर प्राइस इज गोइंग अप बट योर RSI डोंट. तो दिस इज योर टेक्निकल टॉप, right? So price has to come to this level to sort it out. So now at this zone this is sorted out and now this may be the again next journey. Got it? आप कहीं भी देखेंगे आपको इजीली थोड़ा आप ट्राई करना, आपको मालूम पड़ जाएगा. जैसे एक ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द नेगेटिव डाइवर्जेंस एट द टॉप पार्ट. तो आप देखोगे दिस इज एट द सेम लेवल बट योर RSI इज फॉलिंग. अभी के टाइम में तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे इन Dwarike Sugar, sorry, Bajaj Sugar, same thing. Your price is up, but your RSI is down. For that reason, this is your technical top. The stock has to come down. This is your making higher high, but in RSI you are making the lower low. Okay, so this is your negative divergence. I think negative divergence is clear to you. Now coming to the positive divergence. Again, I am going to Nifty. ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होता है? You will find that when the price is at like this level, again suppose your price is coming like this, right? This is your price and this is your RSI. So RSI should also come like down, again up, but this time your RSI will not fall just like what price is falling. ठीक है, ये आपका थोड़ा टॉप रहेगा and again this will go like this. मतलब what it shows that your price is down, ठीक है, but your RSI is up. तो इसको आपको याद नहीं करना है. सिंपली व्हाट दिस कंसेप्ट इज सेइंग दैट प्राइस इज शोइंग नेगेटिव, मतलब इनहेरिटेंस वीकनेस. मतलब प्राइस आपको दिखा रहा है कि वो वीक है, बट नंबर ऑफ क्लोजेस जो है, नंबर ऑफ पॉजिटिव क्लोजेस आर हायर कंपेयर टू द नेगेटिव क्लोजेस. मतलब दैट शोज कि स्टॉक के अंदर इनहेरिटेटेड जो स्ट्रेंथ है वो है जो प्राइस में अभी दिख नहीं रही है. एंड आफ्टर सम टाइम यू विल इजिली फाइंड इट, मतलब दैट थिंग विल come up, मतलब जो uncovered होगा, और you can see the difference in the price. Let me show you with few examples of this thing. Most of the cases in this type of pattern you have to join the bottoms. Again I am repeating, normally लोग क्या करते हैं, नेगेटिव डाइवर्जेंस और पॉजिटिव डाइवर्जेंस में कंफ्यूजन यही कर देते हैं कि वो पॉजिटिव के अंदर भी लाइन को ऊपर ड्रॉ करते हैं. पॉजिटिव डाइवर्जेंस इज टू फाइंड आउट द बॉटम, राइट? तो फॉर दैट रीजन आपको बॉटम पॉइंट टच करना है, ना कि ये पॉइंट टच करना है. Let me show you with some examples. ठीक है, see here, this is your Nifty is forming a flat pattern but your RSI is moving up, right? What it shows that the number of red closes are low
कंपेयर टू द ग्रीन क्लोजेस, बट जो प्राइस को ना इतना दबा के रख रखा है मार्केट के अंदर कि वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं, तो वो चीज़ आपको आर एस आई रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब दिस आर एस आई इज रिफ्लेक्टिंग दैट देयर इज सम हिडन स्ट्रेंथ in the this trend where you will find it on a next move। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपका आरएसआई ऊपर हो रहा है, या इन शॉर्ट ऐसा ही बोल सकते हैं कि प्राइस वाइज आपके जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो, जो हॉर्सेस का जो स्ट्रेंथ है या आपके जो इनर स्ट्रेंथ बोल सकते हो सोल्जर्स का, दैट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो फॉर दैट रीज़न वो गिव अप नहीं करेंगे और यहाँ से एक अगेन एक रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव डाइवर्जेंस। लेट मी शो यू फॉर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे, आप किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, यहाँ पे इस जोन के अंदर आप देखोगे योर प्राइस इज कमिंग बैक अगेन टू दिस लेवल, बट योर आर एस आई इज क्वाइट हाई कंपेयर टू दिस। अगर आप इस पैटर्न में देखेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ प्राइस थोड़ा हाई है, बट स्टिल आप देखोगे तो आर एस आई विल बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन दिस जोन, राइट? सेम लाइक है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव डाइवर्जेंस। एंड नाउ अगेन इन दिस सेम चार्ट आई एम ड्राइंग ए नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए आपको टॉप्स पकड़ना है, तो हेयर यू कैन सी दैट निफ्टी इज गोइंग मेकिंग हायर हाई बट योर आर एस आई डोंट, राइट? तो दिस इज योर टेक्निकल टॉप। तो इसी एंगल पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इट विल शो यू दैट निफ्टी शुड कम टू दिस लेवल और मे बी बिलो दिस लेवल, राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट। दिस इज अ बैड, ये देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है ना निफ्टी का वो ये है, दिस लैक, मतलब प्राइस इज बिटन लाइक एनीथिंग बट योर आर एस आई डोंट, आर एस आई इज मूविंग अप, ठीक है? दैट शोज कि प्राइस वाइज जो करेक्शन हो रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे स्ट्रेंथ आपका दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बाइंग चल रही है जो प्राइस को अभी मैनिपुलेट करके नीचे की तरफ रखा जा रहा है, वो आपको दिखेगा नहीं, बट योर आर एस आई विल रिफ्लेक्ट दैट इनहेरिटेंस स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ट, मतलब ऑफ द आई थिंक इंडेक्स, कि वो आपको दिखा देगा कि हाँ कहीं ना कहीं इसके अंदर स्ट्रेंथ है, एंड फॉर दैट रीजन इट विल गो अप। अगेन सेम थिंग, इफ यू ड्रॉ हिस योर index is going down making lower low but your RSI has same point, right? Again at this point your price is going down but your RSI is at same level, ठीक है? This is the positive divergence. So from positive divergence you can easily find out where the things are going to reverse. Got it? Let me share you few examples. देखो आप यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया एक ही लेवल पे, बट एट द सेम टाइम योर आर एस आई वॉज मेकिंग हायर हाई। तो दिस इज योर बॉटम एंड आफ्टर दैट गुड रिवर्सल कैन बी सीन इन दिस। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस समझना, जब भी स्टॉक मैनिपुलेट हो रहा होगा तो आर एस आई के थ्रू आप उसको पकड़ लो कि देर इज अ गुड मैनिपुलेशन एट दिस पॉइंट। तो अगर इफ यू फाइंड दिस दैट एट द सेम दिस लेवल द प्राइस इज एट द सेम लेवल बट योर आर एस आई इज मूविंग अप, गॉट इट? So you will find that somewhere the bottom is about to made, but now right now if you see this, your price is at the same level, right? But your RSI is not making any pattern, RSI भी आपको almost flat है. At this point you can't say that here the things are going to reverse. Same thing, negative cheat. These are the four tops, right? Every top is weaker compared to the previous one, ठीक है? every leg of this thing is weak compared to this, so for that reason this is your technical top, ठीक है? यहीं से डाइवर्जेंस बनना शुरू हुआ था, तो स्टॉक हैज टू कम यहाँ से। अगर इसी एंगल पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो अराउंड दिस आएगी, तो एट दिस पॉइंट योर दिस डाइवर्जेंस इज सॉर्टेड आउट, नाउ नेक्स्ट जर्नी स्टार्टेड। क्लियर? ठीक है, why Jindal Saw is falling from the same point? This is clear negative divergence, okay? मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, मतलब
with this up leg the strength is not that much. For that reason the divergence built, and this is your technical top, right? So your index अब यही एंगल का अगर आप पेन ड्रॉ करोगे तो around this point you can say this is done. Now from here onwards it will go up again because this is the ulta Pichku candle. Got it? And the same thing, let me cover the support and resistance in these things. So if you touch you have to draw the line. देखिए, for support and resistance you have to draw a line at the point where are the too many touch points. ठीक है, more than 3 तो almost होने चाहिए, 2 to 3 point. तो if you find this line, so this line is around fine. So this is your 1 touch point, 2 touch point, ये 3 4 भी पास ही थे, 3 to 4. Now this was the resistance because stock is falling from the same point. Now at this point the stock has done the breakout, right? And now this point this line is become a जो पहले resistance था, now it will act as a support. So it is taking the first support, again it's going make the negative divergence, again this stock is taking the good support at this line, and again it will go up. Got it? यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ. एक्चुअली क्या है, इफ सपोज लेट मी शेयर, चलो वो आ गया, ठीक है. होप चलो लेट मी क्लियर दिस पॉइंट ओनली. अगर आप यहाँ देखोगे, इफ सम स्टॉक इज ट्राइंग टू break the resistance lines, it will touching like this. More time you are going to hit the resistance line, it will become weaker with every hit. मतलब जब जब इसको आप बार बार टच करोगे तो it will become the weaker and at some point it will break. Same way in the terminology of support, if you are touching support again and again and again, so it will break. With every time you touch the support, it will become weaker. Okay, so it will break. रीज़न क्या है उसके पीछे वो मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. लेट मी शेयर एट दिस मोमेंट बिकॉज दिस पैटर्न इज़ क्वाइट गुड टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो. तो एक्चुअली क्या था, रेजिस्टेंस मतलब एट दिस लेवल पीपल्स आर सेलिंग बिकॉज उनको ये लगता है कि यहाँ पे जो लोग स्टक हैं या फिर कह सकते हैं कि ये वैल्यूएशंस पे समबडी इज फीलिंग दैट दिस स्टॉक इज क्वाइट मतलब एक्सपेंसिव. तो यहाँ पे आपका जो सप्लाई था और सप्लाई एंड डिमांड तो वो मैच नहीं करेगा एंड योर सप्लाई हायर, फॉर दैट रीज़न ये नीचे आया. बट दिस टाइम एंड द स्टॉक विल फॉल, इट विल नॉट फॉल टू दैट लेवल. अगर परसेंटेज में आप देखेंगे ना, यहाँ से इसको मेजर करना होता है. ये इवन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग व्हाट आई टॉट यू इन द मॉड्यूल 2 अबाउट द VCP, राइट? दिस इज VCP, नथिंग एल्स. So this time again a fall, but the buyers shifted to this level. Again at this point again the supply came into the picture, again the stock fall, again same way supply come. At one point will come in this stock where all this supply is observed and it will break this level. Once this breakout will happen, अब ढंग से सुनना मैं जो कह रहा हूँ, once this breakout is done, तो जो लोगों से अपॉर्चुनिटी छूट गए हैं बाय करने का, what they will do, they will just wait for the stock. If the stock will come to this level, they will buy. So for that reason, whenever the stock will come to this level, so the people who miss this opportunity at this point, they will try to grab the stock at this level. Got it? जो लोग यहाँ पे रह गए थे ब्रेकआउट खरीदने पे, वो क्या करेंगे, रीटेस्ट पे. इसलिए आपने सुना होगा कि रीटेस्ट पे आप स्टॉक बाय करो, क्योंकि रीटेस्ट पे वो लोग क्या करेंगे, स्टॉक को बाय करेंगे. तो वो बाय करेंगे, अगेन द स्टॉक विल फॉर्मिंग टॉप. ठीक है, अगेन अगर वो रीटेस्ट पे आएगा तो लोग फिर क्या करेंगे कि चलो फिर से सब मौका मिल रहा है, फिर से उसको बाय करेंगे. गॉट इट? बट एक टाइम ऐसा आएगा कि दिस सपोज आता है कि वो उसको ब्रेक कर देता है. ठीक है, तो अब क्या होगा, इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस. वाई ऐसा क्यों होता है, वाई इट इज बिकम ए रेजिस्टेंस? बिकॉज whenever it come to this level, the people who bought this stock thinking that this is a support or this is a retest, they will try to sell their quantity. तो वो क्वांटिटी को सेल करेंगे. फॉर दैट रीजन दिस सपोर्ट विल बिकम द रेजिस्टेंस. तो फॉर दैट रीजन अगेन इट विल गो डाउन. तो द वैल्यू इन्वेस्टर विल कम एंड सोचेगा नहीं ये तो बहुत सस्ता है, अगेन वो बाय करेगा, अगेन विल गो टू दिस लेवल. अगेन द पीपल हु स्टक एट दिस लेवल, दे विल अगेन सेल द स्टॉक वंस दे गेट देयर प्राइस एंड अगेन दिस विल बिकम ए रेजिस्टेंस. तो होप यू गॉट इट कि हाउ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वर्क. ठीक है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट इज नथिंग एट द पॉइंट, एट द जंक्शन वेयर द सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड कि क्या करना है, स्टॉकों का के साथ क्या किया जाए. गॉट इट?
Now with few more example we will understand the same thing again. Okay. This is your dealing chart, right? Now let me introduce one more thing with you. If you touch this point, right, your price is making higher at this point, your RSI is not. What is this? Is this the positive divergence or what? Because in positive divergence your price will rotate at the same point, right? So this is called hidden bullishness, right? This is what called hidden bullishness. You don't need to remember this. Let me make you understand in the Desi language. What is hidden bullishness? Hidden bullishness is that एट आर एस आई विल कूल ऑफ, आपका आर एस आई कूल ऑफ हो जाएगा लेकिन जो प्राइस है वो गिव अप करने को तैयार नहीं है. फॉर अगेन आई एम रिपीटिंग, योर नंबर ऑफ रेड क्लोजेस आर हायर कंपेयर टू द ग्रीन क्लोजेस बट योर प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप. मतलब जो आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, नंबर ऑफ रेड क्लोजेस आप काउंट करो, दैट इज 4 एंड सिंगल वन डे क्लोजेस क्रॉसिंग दिस 3 days, right? Similarly again then 3 to 4 days red closes and one only 1 या 2 single days just adjusted it. तो मतलब नंबर ऑफ रेड क्लोजेस ज़्यादा है, तो अगर नंबर ऑफ रेड क्लोजेस ज़्यादा होगी तो योर आर एस आई विल ऑल मतलब कूल ऑफ हो जाएगा, राइट? तो आर एस आई इज कूल ऑफ और प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप. व्हाट इट शोज? इट शोज दैट प्राइस हैज सम इनहेरिटेंस स्ट्रेंथ इन इट, कि प्राइस बोलता है मैं गिव अप करने को तैयार नहीं हूँ, आपको नंबर ऑफ रेड क्लोज करना है आप कराओ, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मतलब समवेयर एट दिस पॉइंट द बायर्स आर सिटिंग, बायर बोलता है आने दो नीचे, मैं लेने को तैयार हूँ. तो दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक. तो दिस इज कॉल्ड हिडन बुलिशनेस. ऐसा कहीं आपको पैटर्न मिलता है तो आफ्टर सम टाइम द स्टॉक विल अगेन शो द स्ट्रेंथ, राइट? अभी आप देखो अगेन इन द सेम स्टॉक, इफ यू थिंक, इफ यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो, राइट, तो व्हाट यू विल फाइंड दैट कंपेयर टू दिस आर एस आई एट, मतलब जहाँ पे अभी आर एस आई है यहाँ पे, लेट, ठीक है, एट दिस पॉइंट पे आपका प्राइस है, राइट? तो यहाँ पे जो आपका आर एस आई था, तो आर एस आई भी शुड ऑल्सो गो लाइक दिस ओनली, ठीक है? आपका आर एस आई यहाँ पे होना चाहिए था इस हिसाब से, बट और आर एस आई इज लो. वॉट इट शोज? इट शोज दैट प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप. प्राइस को भी कायदे से यहाँ आना चाहिए था. प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप बिकॉज बायर्स आर सिटिंग इट देयर, बट नंबर ऑफ रेड क्लोजेस नो डाउट आर हायर. आप देखोगे तो नंबर ऑफ रेड क्लोज आपको दिख ही रहा है. Number of red closes are higher. For that reason, price is RSI is down, or you can say that is cooling off, but price is not getting that much dent. ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन उतनी स्पीड से नीचे नहीं आ रहा जिस स्पीड से आपका RSI आ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ क्लोज नेगेटिव है, बट उस दिन क्लोजिंग में ज़्यादा डेंट नहीं है. 0.2% का फॉल होगा या 0.3%, 0.4% की नंबर ऑफ क्लोजिंग ज़्यादा है. वन सिंगल कैंडल विल कम 4 to 5 और 10%, इट विल जस्ट कंपनसेट द अदर थिंग. तो दिस इज शो द हिडन बुलिशनेस. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही ये है, तो जब भी मार्केट में फॉल आएगी ना, तो आपको पता रहेगा कि आपका जो स्टॉक है उसके अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है. whenever the good fall come into the market, so you will easily get whether your stock has the strength or not. If your RSI is going down but price is not ready to give up, so once the correction will go over, your stock will again rebound. Got it? और पर कुछ भी ले लो. ठीक है, दिस इज द रोलेक्स रिंग. ठीक है, इस पॉइंट पे आप देखो एट दिस जंक्शन, ठीक है, normally price is at the same range but your RSI at this point is going up, so that shows that this at this point your good buying is going on. Now let me club it with your Darvex box. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ स्ट्रेंथ ढूंढने का जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द बॉक्स. नाउ नेक्स्ट टाइम whenever you are buying the box breakout, just have a look on the RSI whether your RSI is rising or not. If your RSI is rising and your box breakout is happening even on the downtrend, you can bet on such type of stocks. Got it? Okay. For example, I bought Decol for 2 to 3 days back. ठीक है? Oh no, not Decol, ये कौन सा था? केमिकल लिया था ना मैंने परसों.
ये इनग्रेविया, ठीक है। वाई आई जस्ट बॉट दिस स्टॉक ऑन आई थिंक सेकेंड डे ना, यहाँ पे मैंने कुछ बाय किया इसको 766 के आसपास, ठीक है। अगेन इट फॉल 1%, 1.4%. Why I bought this stock at this level is because this RSI is around 70. So I want to buy the stock at 70, but still I didn't buy at the 70 level. Reason, because I know overall market is under pressure. So for that reason the stock will surely come down. So I was just waiting कि ये stock 10 EMA के आसपास आ जाए या थोड़ा नीचे आ जाए तो I can make a buy on this. Got it? There is no any other reason behind this stock. अगर आप देखोगे तो बाकी सब पैटर्न वही था. दिस इज अ वीकली ब्रेकआउट एंड एवरीथिंग इज ओके. फॉर दैट रीजन आई जस्ट बॉट दिस स्टॉक. मंथ दिस इज ऑल्सो मंथली ब्रेकआउट. मेरे मोस्टली स्टॉक्स आप जो भी देखोगे व्हाट आई बाय इज आफ्टर द मंथली ब्रेकआउट ओनली, वीकली और मंथली ब्रेकआउट, ठीक है. डेली पे भी आई वांट द सपोर्ट. So for that reason this is the part. Now see this, you will find whether the strength is there or not. The price is at the same level but your RSI is going up. Okay, matlab the price came to the same level but somewhere the strength is there. For that reason your RSI is moving up, and this is what next. Again at this point if you see that your price is going up, your RSI is going down. For that reason this is a technical top, then again it's come down, and this is how the things work. At this level again you see that your price is RSI is same level but your RSI is going up, and this is your technical. अब आपको दूर से कभी भी आप देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे आपका बॉटम बन रहा है या नहीं बन रहा है. गॉट इट? So this is how you have to find out. Try to use this on weekly chart. मतलब डेली पे ठीक है आपको कई बार इंसिडेंट होते हुए दिख जाएंगे, बट ऑलवेज ट्राई टू वॉच दिस ऑन द डेली चार्ट, राइट? वीकली चार्ट, सॉरी. नाउ coming to index, you can apply this on the index also. So this is your metal index, right? So what is happening at this point, let me hide the box and RSI too. Okay, too many weeks at the same point and your RSI is little bit weak compared to this, and for that reason this is you can even put the stage analysis at this point. तो box को आप लगाओगे तो this is your stage 2, this is your stage 3. right now the metal is in the stage 3. simple sort out thing, no alert wave, right? got it? तो यहाँ पे अभी ये वो चल रहा है. तो अभी अगर अब आपको ये तो मालूम पड़ गया कि यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस था, तो फॉर दैट रीजन द स्टॉक इज मतलब इंडेक्स इज कमिंग डाउन. नाउ सी वन थिंग, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक हिडन बुलिशनेस दिख रही है कि मतलब नंबर ऑफ रेड क्लोजेस आर हायर कंपेयर टू द प्राइस. मतलब प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप. हिडन बुलिशनेस को आपको कैसे पढ़ना है, जब भी मेरे से बात करोगे नेक्स्ट टाइम, तो प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप बट द नंबर ऑफ रेड क्लोजेस आर हायर बट प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप. तो आपका नंबर ऑफ रेड क्लोजेस आप देखोगे इन 14 वीक्स के अंदर तो वो ज़्यादा है. तो फॉर दैट रीज़न आपकी क्लोजिंग नहीं चाहिए, बट जो प्राइस है वो गिव अप करने को तैयार नहीं है. तो फॉर सम रीज़न आफ्टर अ गुड कूल ऑफ इट विल अगेन start moving up. Got it? तो अगर आप यहाँ देखेंगे ऑन डेली चार्ट, you will not find the momentum in this way, right? तो हर इंडेक्स का भी एक सेम ही स्टोरी है. एवरी इंडेक्स इज एट ए सपोर्ट. तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है या आप एक अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल पे बाय करना है तो दिस इज अ गुड लेवल टू बाय द स्टॉक. बट यहाँ मोमेंटम नहीं मिलेगा. रिमेंबर वन थिंग, यू विल नॉट गेट द मोमेंटम बिकॉज योर RSI इज not that strong. Your RSI is just near the 3740 level and I told you to buy around 70. ठीक है. On monthly chart what is happening actually, आप मंथली पे देखोगे तो RSI जो था आपका that is already in the oversold zone, right? तो for that reason this is cooling off. तो there is nothing to worry about. आप सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई थी. Your RSI is too high तो it cool off to the 65 level. Right now this RSI is around
अगेन 65 67 की रेंज में, अगेन द थिंग्स विल गो अप एंड सेम वे द डाइवर्जेंस बिल्ट एट दिस पॉइंट, आप देखोगे योर प्राइस इज अप एंड योर RSI इज डाउन, राइट, द डाइवर्जेंस विल बिल्ड एंड देन ओनली द मार्केट विल फॉल। अभी आपको यहाँ कोई डाइवर्जेंस दिख रहा है नहीं है ना, तो अभी कुछ भी नहीं होगा, फिर से एक लेग ऊपर जाएगा, देन अगेन द थिंग्स व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम ना, दिस विल गो अप and this will go up but your RSI will not move to this level and your divergence will build, then only it will come down, got it। सेम चीज़ आप कहीं पे भी देख लो, यहाँ देखो आप, ये देखो ये आपका ये डाइवर्जेंस बिल्ड हुआ दोबारा, उसके बाद फिर आप गिरना शुरू हो, यहाँ पे देखो योर लेवल इज एट सेम लेवल बट योर RSI इज नॉट, देन ओनली द थिंग्स विल करेक्टेड। सेम में आप यहाँ देखोगे 4 to 5 weeks but your RSI is going up, this is your positive divergence and the market go up, सिंपल सा फंडा है, गॉट इट। लेट मी अगेन मेक यू अंडरस्टैंड विद दिस। इन पॉजिटिव डाइवर्जेंस में क्या होगा, आपका प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन आपका RSI ऊपर की तरफ जाएगा, तो दिस इज योर पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इन नेगेटिव डाइवर्जेंस यू नीड टू कनेक्ट द टॉप्स, आप टॉप्स को कनेक्ट करना, योर प्राइस विल गो मेक हायर हाई बट योर RSI डोंट, मतलब आपका RSI जो होगा वो वीक लैग होगा, तो दिस इज योर नेगेटिव डाइवर्जेंस। दिस इज योर हिडन बुलिशनेस, मतलब प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप। हमेशा डीलिंग का एग्जांपल माइंड में लाने का, डीलिंग का, कि वो प्राइस नीचे आने को तैयार नहीं है बट नंबर ऑफ क्लोजेस जो है वो नीचे आ चुकी है, राइट, तो नंबर ऑफ क्लोजेस ऑफ रेड क्लोजेस आर हायर कंपेयर टू द green closes, for that reason your RSI come down but price is not ready to give up, so this is the hidden bullishness and this is not of use, hidden bearish divergence, because we are not the short seller, right। So let me show you with the examples I already showed you, and this is the Chennai Petro, your price is going down but your RSI is going up, for that reason this is make a higher high, ठीक है। दिस इज आई थिंक जैक्सन फार्मा एग्जांपल, प्राइस इज मेकिंग 5 to 6 days सेम प्राइस, योर RSI इज गोइंग अप एंड देन अगेन अप मूव्स कम, ठीक है। दिस इज अ फ्यू मोर एग्जांपल्स टू शो द सेम थिंग, पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आई ऑलरेडी कवर्ड दिस व्हाइल मेकिंग शेयरिंग विद दिस। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन विथ मैक्सिमम टच पॉइंट, जो जैसे मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम 3 points हो तो बेटर है। व्हेन द प्राइस ब्रेक द सपोर्ट इट बिकम द रेजिस्टेंस, ठीक है, वो आपको बताया मैंने कि वंस द सपोर्ट ब्रेक इट विल बिकम ए रेजिस्टेंस। द मोर टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आर टेस्टेड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, द वीकर दे बिकम, ओके, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। यूज EMA एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। For support and resistance we have too many things, for examples, first of all the box itself is helping you find out the support and resistance. Next thing is EMA, so normally 10 20 50 or 100, the EMA also work as a support. Once the EMA break, right, then it will again become a resistance for the index or whatever the stock. Higher lows into the resistance are the sign of strength, ठीक है। Higher low, what it's saying, same thing what I covered, हायर लो जो होगा वो आपका स्ट्रेंथ शो करेगा, मतलब दिस इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, तो इट विल ब्रेक, ठीक है। तो हायर लोज इन द अदर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, सिमिलरली लोअर हाइज इन द सपोर्ट आर द साइन ऑफ वीकनेस। सपोज सम स्टॉक इज फॉर्मिंग दिस पैटर्न, मतलब एवरी इट इज टचिंग अगेन एंड अगेन, तो इट विल ब्रेक, राइट। तो लोअर हाइज इन द, दिस इज द लोअर हाइज, राइट, so this are the sign of weakness. Now coming to the price action part. In price action, we will see how to talk with the candles. You can ignore the fundamental use because price and volume is what all you need, right? तो जैसा मैंने आपको बोला कि price and the volumes are the only leading indicator, तो you just need to find out all the news just from the this both two indicators, right? बट ऐसा नहीं है, इसका गलत भी इस्तेमाल होता है, वो भी आपको बताऊंगा। आपने कभी सुना है कि हैव यू एवर हर्ड दैट द न्यूज़ रिपोर्टर सेज आई हैव नो आइडिया व्हाई मार्केट इज वेंट डाउन। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली व्हाट हैपन ना, व्हेन एवर द मार्केट फॉल, तो व्हाट वी विल डू इज एक्चुअली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द व्यूज ऑफ द पर्सन वी फॉलो। मतलब या तो आप टीवी चलाओगे CNBC पे और ढूंढने की कोशिश करोगे वाई द मार्केट इज फॉलिंग, राइट, या फिर जिसको भी आप मानते हो उसके आप ट्वीट का वेट करोगे कि वो कुछ बोलेगा कि क्या व्यूज़ है उसके मार्केट के, कि वेदर मार्केट विल फॉल मोर और इट विल करेक्ट, मतलब यहाँ से बाउंस होगा या वॉट एवर इट इज़।
So you will find a good news. For example, not good news, just you will get some things which are related to that thing. For example, let me show you. If the market is going down, so what will happen? You will start seeing the GST rate is increased, and the financial budget is not according to the what market was expecting, or some war is happening and फलाना ढीमकाना, वो सब बहुत सारा न्यूज़ आपको मिलता रहेगा, ठीक है. एंड यू थिंक दैट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़ द मार्केट वॉज फॉलिंग, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. मार्केट वॉज फॉलिंग, फॉर दैट रीजन दिस न्यूज़ आर कंसिडर्ड एज ए source for that fall in the market. Are you getting this? Same way, when the market is going up, तो ये जो रिपोर्टर लोग होते हैं क्या करते हैं, इनके पास दो बुक्स रहता है, एक ग्रीन बुक, एक रेड बुक. वेन एवर द मार्केट गो अप और डू द गैप अप ओपनिंग, दे विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द ग्रीन बुक. ऐसा ये कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे नहीं पता मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, मुझे नहीं पता मार्केट नीचे क्यों जा रहा है. तो फ्रॉम ग्रीन बुक दे विल स्टार्ट रीडिंग कि इंडिया का जीडीपी अच्छा हो गया, या ये इन्फ्लेशन नंबर अच्छे आए हैं, मतलब सीपीआई इंडेक्स बहुत अच्छा है, मतलब देयर टू मैंने कि मतलब ये डील हो गया है, या उस कंपनी की फलाना डील हो गई, ढीमकाना डील हो गई, मतलब गुड न्यूज़ विल स्टार्ट flowing into the market, and you will think that just because of this good news the market is going up. You just need to remove think that the news is no role in the no participation in the role of stock price movement. ठीक है, अगर कोई डील होता है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इसका कोई इम्पैक्ट होता नहीं है. एंड फॉर दैट रीजन यू शुड इग्नोर द न्यूज़ इन द मार्केट. आपको कोई नहीं बता सकता मार्केट कहाँ जा सकता है, सिर्फ आपका एनालिसिस जो है वो ही आपको बताएगा कि मार्केट के अंदर व्हाट शुड यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट. क्या होगा वो तो कोई भी नहीं जानता, ठीक है, बट यू कैन मेक ए अजम्पशन कि यहाँ से मार्केट क्या चीज़ क्या करेगा. तो व्हेन यू रीड द प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन इज नथिंग, जस्ट लेट मी शेयर यू विद सम एग्जांपल. लेट मी टेक द NSL, ठीक है. तो दिस इज द नेशनल इंश्योरेंस, ठीक है. दिस इज फॉलिंग, और ये NSL हो गया. दिस इज नेशनल इंश्योरेंस, राइट. द स्टॉक इज एट सपोर्ट. लेट मी ओपन द वॉल्यूम. Still I am holding this stock because as per the rule this should be your stop loss. तो यहाँ पे मुझे stop loss लेके निकल जाना चाहिए था. Still I am holding. Reason क्या है? Because this is the overall market movement. Overall market का movement देखोगे वो भी कुछ इस तरह का ही है, वो भी डाउन जा रहा है तो ये भी डाउन जा रहा है. बट इफ़ यू फाइंड दैट देर इज़ ए गुड वॉल्यूम एट दिस पॉइंट, राइट, मतलब यहाँ पे उस दिन 17-18% चला था, मतलब 12% चला था, मतलब सम गुड बाइंग इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट. बट नो डाउट दिस लैग वॉज वीक. पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो दिस लैग वॉज वीक, मतलब ये ऊपर गया बट दिस लैग वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. तो फॉर दैट रीजन डाइवर्जेंस बिल्ड, एंड फॉर दैट रीजन दिस स्टॉक इज कमिंग डाउन विद द मार्केट. ओवरऑल मार्केट इज ऑल्सो लो. वॉट विल हैपन इन सच टाइप ऑफ स्टॉक? वन गुड कैंडल विल कम एंड कवर अप एवरीथिंग, ठीक है. बट इफ यू सी ना, तो यहाँ स्टॉक जो है आप देखोगे ना, आप लेट मी शो यू ऑन, ठीक है. आप यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, राइट. तो योर प्राइस इज नॉट योर, मतलब RSI इज एट द 50, बट प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप. देयर इज सम स्ट्रेंथ इन द प्राइस, तो इट विल कैच इट अप, मतलब वो कर लेगा, वो कैच करके यहाँ से हायर हाई बना के ऊपर चला जाएगा. ऐसा मेरा एजम्पशन है. मे बी आई विल गो रॉन्ग, बट दिस इज माई एजम्पशन. इट विल कैच द थिंग एंड विल स्टार्ट मूविंग अप, बिकॉज इन दिस लेग ऑफ करेक्शन ना, दिस इज क्वाइट टू लो वॉल्यूम्स. आप देखोगे ना वॉल्यूम्स में है ही नहीं. कभी भी किसी स्टॉक को गिरना होता है ना, तो काफ़ी अच्छा पहले आपको वॉल्यूम दिखेगा, देन ओनली द थिंग्स विल रिवर्स. ये मैंने आपको आई थिंक IRCTC और उस टाइम पे बताया था. किसी स्टॉक का अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना है ना, तो यू विल फाइंड ए गुड वॉल्यूम्स. जैसे आप यहाँ पे ये देखना अगेन, ये जो 2 दिन का जो वॉल्यूम था ना, ये काफ़ी सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था, एंड देन ओनली द थिंग्स विल गो डाउन. अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट ना ऑन वीकली चार्ट, दिस इज IRCTC. ओके, दिस इज नॉट मूविंग. द रीजन इज बिकॉज योर जो RSI है दैट इज लो, बट दिस विल नॉट फॉल मच. फॉर रीजन क्या है, आप देखोगे योर प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप, बट योर RSI इज कूल्ड ऑफ एट ए टू मच हाई लेवल. तो फॉर दैट रीजन आप ये देख रहे हो, बिकॉज ऑन डेली दिस इज ऑन डेली थिंग, योर RSI इज नियर द 730 जोन. तो यहाँ पे अब करेक्शन के बाद कुछ बचता नहीं. मोस्ट केसेज में आप देखोगे
you will find the good bounce from this zone only, because the reason is the volumes are not there. प्राइस एक्शन में आपको ये देखना है कि वॉल्यूम भी वही चीज बोल रहा है जो प्राइस बोल रहा है। तो यहाँ पे ये प्राइस बोल रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, नॉट बिकॉज ऑफ सम बिग प्लेयर्स आर सेलिंग। Got it? At this point you will find a good break, good gap, and this is because of result gap. यहाँ पे आप बोल सकते हो that good selling is happened at this point, ठीक है? फिर then again this volatility happened, but at this point you can't say that the good selling is going on. This is the market, because overall market is going down. For that reason the stock is also suffering from the same thing. The same thing is happening in PSU, और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। सेम थिंग, दिस इज PSU इंडेक्स। यहाँ पे भी आप देखोगे ये सब पता है क्यों हो रहा है। नाउ लेट मी टेक यू टू द मंथली चार्ट। नाउ यू yourself will find out why this is happening. Your RSI was around 90 on monthly chart, so it need to cool off, it need to come to the 70 zone to make a further rally, because once I told you, once your monthly RSI enter into the zone of 70, तो यहाँ से बहुत लंबा जर्नी होता है, बट ऐसा नहीं है कि जर्नी it will go like this only, right? It will come to 70, then again it will go like this only, right? तो फॉर दैट रीज़न अगर उसको मंथली पे कूल ऑफ होना है तो डेली पे उसको आना पड़ेगा 30 RSI, या इवन वो ओवरसोल्ड में भी जा सकता है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट द मार्केट इज डूइंग। आप देखोगे ना 3 महीने का कोई रिटर्न नहीं है इसके अंदर, मंथली के अंदर। क्यों नहीं है? बिकॉज वो नंबर ऑफ क्लोजेस रेड आपका हो रहा है, नंबर ऑफ क्लोजेस जो है ना वो आपका रेड बढ़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन प्राइस में स्टिल देयर इज नॉट दैट मच डेंट। अगर होना होता तो एक ही कैंडल के अंदर हिसाब बराबर हो जाता। Got it? So this is just a RSI cool off, but you don't know how much time it will take to close this level. Now coming on this, अब यहाँ पे देखो, this is on daily chart, ठीक है? इस दिस लेवल पे आप देखो ये करेक्शन होके आया, बिकॉज दिस इज द नेगेटिव डाइवर्जेंस, राइट? द प्राइस इज गोइंग हायर हाई बट योर RSI इज गोइंग डाउन। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से गिरा, बट गिरा एट दिस पॉइंट। अगर आप नीचे का लाइन ड्रॉ करोगे तो व्हाट इट शोज that price is not ready to give up to this level. इसको यहाँ तक आना चाहिए था गिर के, because RSI and price move hand in hand, but the price has some strength. For that reason price is not ready to give up compared to the number of red closes, and for that reason again the good journey started to up point. Are you getting this? सेम चीज यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम आपको डर नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हिडन बुलिशनेस है या मेरा स्टॉक ही वीक है या क्या चीज़ है। अगर स्टॉक में सेलिंग हो रही है, गैप डाउन बन रहे हैं, वॉल्यूम्स है, देन दिस थिंग विल नॉट वर्क। इसका मतलब तो ये है स्टॉक के अंदर ही कहीं ना कहीं आपका कुछ इशू है। क्लियर है? तो अभी आपको समझ में आ गया PSUs क्यों नहीं चल रहे, PSU बैंक्स क्यों नहीं चल रहे, बिकॉज ऑलरेडी मंथली RSI इज टू हाई, दे आर जस्ट कूलिंग ऑफ। ओके, अब सेक्टर का आपने देख लिया, आपको स्टॉक वाइज भी यही चीज़ दिखेगा। व्हाट नाउ मंथली RSI आप देखो इसका, क्या नाम है, रेलटेल का। रेलटेल RSI 90 था, तो इट टच टू द 70 जोन, अगेन इट बाउंस, बट अगेन सी what the difference, you will find it easily. Then your price is going up but your RSI is not that strong, so for that reason it's again falling, it will again touch this level 70 zone, ठीक है? ये RSI cool off process चल रहा है। RSI cool off process is going on in the market, for that reason you are not seeing any selling pressure, also not a buying pressure, ठीक है? तो ये ऐसे कंसोलिडेशन चलता रहेगा, बट एट वन पॉइंट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगेन योर RSI कूल ऑफ ऑन एवरी टाइम फ्रेम एंड देन इट स्टार्ट मूविंग अप इफ द अर्निंग्स आर सपोर्टिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेंड ही ऊपर चलता है, योर अर्निंग नीड टू बी सपोर्ट एट सम लेवल, बट इट बिकॉज अभी यहाँ पे आप देखो, आपको पता है मंथली में वो अप ट्रेंड में, तो डेली में 50 RSI या मतलब सेम एट लेवल पे आया, देन अगेन इट स्टार्ट मूविंग अप, ठीक है? So this is how on, if the bigger time frame is good, then you don't need to worry about the daily, it may recover in 1 or 2 to 3 good days, right? ठीक है, अभी IFCA की आप बात करो, क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, you are forming a higher high, got it? And at this point सब, if you connect, your RSI is going down but your price, इस लाइन पे आप देखोगे यहाँ पे, if price is not ready to give up, your RSI is cooling off,
right? So this is still good. Okay, तो यही वजह है कि जब भी मार्केट ओवरऑल वीक हो तो आपको कभी भी ब्रेकआउट नहीं बाय करना. यू डोंट नीड टू बाय द ब्रेकआउट, यू जस्ट नीड टू बाय द बॉटम्स. और बेटर है आप कैश पे बैठो तो वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज यू डोंट नो विच ब्रेकआउट विल फेल एंड इट विल गो लाइक दिस ओनली. तो एट दैट टाइम द थिंग्स विल बिकम वर्स्ट, राइट? वेन एवर द ट्रेंड इज अप ट्रेंड, जब भी आप अप ट्रेंड होगा तो आपका RSI नॉर्मली 50 से ऊपर ही रहेगा, 50 to 90 की रेंज में ही वर्कआउट करेगा. एंड व्हेन योर ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव, ठीक है, जैसे आप यहाँ देखोगे योर ट्रेंड इज नेगेटिव, योर RSI विल रिमेन बिटवीन द 30 या 20 to 50 की रेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है. इफ़ योर ट्रेंड इज अप, योर RSI विल रिमेन बिटवीन 50 to 90 के बीच में. एंड इफ़ योर ट्रेंड इज नेगेटिव तो आपका RSI ऐसा नहीं, उसमें भी सेम चीज़ है, योर RSI विल गो अप, ठीक है, प्राइस विल गो अप, बट अगेन इट्स मेक ए लोअर लो. ओके, तो योर RSI विल रिमेन इन द जोन ऑफ 50 to 30. So this is how you have to study what the candles are actually saying. Now let's see in the this part. RCF में मतलब कोई भी फर्टिलाइजर स्टॉक आप ले लो, तो व्हाट इज हैपनिंग इन फर्टिलाइजर, द राइट नाउ द स्टॉक्स आर एट सपोर्ट. ठीक है, इस जंक्शन पे आपका RSI देखो और इस जंक्शन पे आपका ये देखो, मतलब योर प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप बट योर नंबर ऑफ रेड क्लोजेज आर हाई. ठीक है, तो इंडियन मार्केट के अंदर अभी जो सिनेरियो वो यही है कि प्राइस गिव अप करने को तैयार नहीं है, स्टॉक गिरने को तैयार नहीं है, बट वो चलने को भी तैयार नहीं है. और चलने को तैयार नहीं है क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट के अंदर. बाइंग आएगी तो व्हाट विल हैपन व्हेन द ड्राई वॉल्यूम कम इनटू द पिक्चर, एंड देन आफ्टर द ड्राई वॉल्यूम, इफ सम गुड वॉल्यूम, even a small bit 3 to 4 crore volume will come into the stock, now it will directly take the stock to up. Got it? लाइक प्रकाश पाइप आप देख लो. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है, अराउंड आपका प्राइस सेम लेवल पे है, बट योर RSI मतलब नंबर ऑफ रेड क्लोजेस आपका ज़्यादा है. ठीक है, दिस इज हिडन बुलिशनेस, आपका नंबर ऑफ रेड क्लोजेस ज़्यादा है, बट प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप. ठीक है, एंड वॉल्यूम्स आर ड्राइड. आप देखोगे ना तो जो भी रेड डेज हैं, वॉल्यूम इज नॉट देयर. तो वन सिंगल बाइंग केम इनटू द पिक्चर एंड दिस इज व्हाट everything is recovered within a one candle. Got it? So for that reason, if your stock is near the all-time high, if your stock is fundamentally good, if your stock is in uptrend, you don't need to worry about few days of correction. It will automatically recover. Got it? So this is how you work. For example, let me take Suntech. Okay, now what is happening in the Suntech? This is your negative divergence at every high. You are making lower low. टेक्निकली ये आपका इस लाइन पे आप करोगे तो दिस इज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो यहाँ तक इसको आना था. एट द सेम टाइम यू गेट वन मोर ब्यूटीफुल थिंग, दैट योर प्राइस इज अप बट योर RSI इज डाउन. राइट, मतलब इस कायदे से इस प्राइस को यहाँ आना चाहिए था, बट प्राइस इज नॉट कमिंग टू दिस लेवल. दैट शोज दैट प्राइस हैज अ स्ट्रेंथ, द स्टॉक इज जस्ट वेटिंग फॉर द थिंग्स टू बिकम नॉर्मल, एंड देन अगेन दिस ट्रेंड विल अगेन स्टार्ट हो जाएगा. इसलिए नॉर्मली मैं हमेशा अप ट्रेंड स्टॉक्स के अंदर ही बार बार बाय सेल करता रहता हूँ. नॉर्मली आपने देखा होगा, आई डोंट ब्रिंग न्यू स्टॉक इन द लिस्ट, आई जस्ट टेक द स्टॉक फ्रॉम दिस लिस्ट एंड डू दिस टाइप ऑफ थिंग. Okay, for example, Navkar, I booked it. Again, the what the stock is doing. Even I don't know what the result is, but what chart is saying ना, अगर आप देखेंगे तो this is the breakout. Then again, this is the retest, and your RSI on bigger time frame में monthly पे okay है, and weekly में touch करके this is taking again the support, and there is no such volumes on the last 3 weeks. तो आपको समझ में आ गया ना अभी मार्केट क्यों नहीं चल पा रहा? जस्ट बिकॉज देर इज नो गुड बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम, जस्ट मार्केट इज टेकिंग ए रेस्ट. ओके, so this is how you need to read about this thing. So this is the price action, you how to talk with the candles. So you just, if you implement the hidden bullishness, no, you will easily get what the price is saying to you. If the price is not following the RSI, that shows that price has some other thing to say. You just need to club the concept of price with the RSI, so it will directly give you the message of what is next the price can do.
because RSI, you know that this is the leading indicator, but this will give you the concept what price can do in the future, and you just need to connect it with your Darvex box and the other concept what I taught you about the soldiers, EMA and everything. So it will give you the more clear picture. Still in last, I will want to tell you one thing, that I will summarize with this concept is, you need to buy the stock which is near the all-time high, uptrend, weekly breakout, volume should be more than 2x 3x और 10x हो तो बहुत ही अच्छे है, right? You just need to buy this stock, उनको छोड़ दो, then see the power and try, your soldiers will accumulate. ठीक है, यहाँ पे if you are missing the stock, no need to worry. Once this stock coming to form near the 10 MA and make the jiddi pattern ना, just put 20 30 40% of the money in the stock. आपको मंथ के अंदर ऐसा 4 से 5 स्टॉक मिलते हैं ना, इट विल मेक योर कैपिटल 2x 3x. यू जस्ट नीड टू वेट फॉर दैट, बट ट्राई टू अवॉइड द रिजल्ट डेट. रिजल्ट डेट के ऊपर आपको बड़ा कैपिटल मार्केट के अंदर कभी भी उस स्टॉक के अंदर नहीं होना चाहिए. तो जस्ट ये मैंने आपको जो बताया ना, जिद्दी पैटर्न और ये सब कुछ भी नहीं है. ये सब जो पैटर्न्स एक्चुअली, लेट मी टेल यू हाउ दिस पैटर्न्स इमर्ज इन माई माइंड. वॉट आई डू इन माई स्टार्टिंग डेज, मतलब आज से कुछ मतलब 5-6 साल पुरानी बात है, कि आई यूज टू रीड द स्टॉक्स विच फॉर्म द, फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू रीड द स्टॉक, जैसे इसने बनाया यहाँ पे 13%, तो आई यूज टू रीड द सच टाइप ऑफ स्टॉक कि हाउ टू गेट दिस 13% ऑफ कैंडल. तो फॉर दैट रीजन आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग द स्टॉक फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 या 7 कैंडल्स को मैं रीड करना स्टार्ट किया. तो आई फाइंड द सेम पैटर्न्स आर फॉर्मिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, जैसे डीलिंक का आप एग्जांपल ले लो. ठीक है, तो यू विल, मैंने जब डिस्कवर किया ना, तो सेम पैटर्न एक ही चीज़ मेरे को बार बार दिखने लगा कि वंस दिस बॉक्स ब्रेकआउट हैपेंड विद दिस, तो वेन एवर द स्टॉक्स कम टू अगेन टू द 10 MA एंड योर ऑल द सोल्जर्स आर इन अप ट्रेंड, राइट? Though then again stock will make a sudden blast again after touching this. Same thing happened at this point, same thing happened at this point. So buying selling patterns are almost similar in every type of stock. आप देखो, कोई भी देखो, जो भी स्टॉक चला है ना, you will find the same pattern. ठीक है, this is your B box, this is weekly. तो ठीक है, this is the movement, then this is your 2 week sideway, then again a uptrend, a movement. अब now what is happening? Now you know the concept of RSI. तो आप यहाँ पे देखो, दिस इज योर RSI इज कूलिंग ऑफ, बट योर प्राइस इज नॉट रेडी टू गिव अप दिस होल लैग. गॉट इट? सेम थिंग आप यहाँ पे भी देखो, इसमें क्या होगा वीकली में, इफ योर RSI इज टचिंग द लेवल ऑफ 85, फॉर दैट रीजन दिस इज कूलिंग ऑफ. इट विल कम वंस इट कम टू 70 एंड इट विल गो लाइक दिस, बिकॉज ऑन मंथली दिस स्टॉक जस्ट एंटर्ड इनटू द जोन ऑफ 70. तो ऐसा स्टॉक अगर आपको मिल रहा है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट वेट फॉर द स्टॉक टू कम एट द गुड लेवल ऑन डेली और मेक ए गुड बेस, देन यू कैन बाय सच टाइप ऑफ स्टॉक. तो ये जो पैटर्न है ना, जैसे यहाँ पे देखो, अब ये करने का जिद्दी पैटर्न बना, तो वाई आई एम टेलिंग यू 4 to 5 days, बिकॉज ऐसे स्टॉक से पहले हमेशा ऐसा पैटर्न बनता है. फर्स्ट ब्रेकआउट को क्यों आपको छोड़ना है, वाई यू नीड टू लीव द फर्स्ट ब्रेकआउट, बिकॉज फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद यू नीड टू वॉच वेदर विच पैटर्न इज फॉर्मिंग. इफ इट्स फॉर्मिंग द जिद्दी पैटर्न, देन यू नीड टू buy the stock. At this point all the soldiers are aligning, your volume is what I told you, 2x or more than 2x, your RSI is same concept. You just need to repeat again and again. कुछ नया मत लगाओ, सिर्फ इस कंसेप्ट को जो दिख रहा है ना आपको, ये इसी कंसेप्ट को बार बार रिपीट करते रहो. अगर 2 to 3 मंथ के अंदर भी आपको, इफ यू आर गेटिंग वन सिंगल स्टॉक सच टाइप ऑफ, यू put 50% of capital in such type of stock, you will make a good returns. You don't need to do daily hustle कि ये बाय करें या वो सेल करें. गॉट इट? तो just paste such type of stocks on your wall, so that you will remember the patterns and you will buy such type of stock in future. Okay, so this is all from my side. Thank you.